given to double the covering range of a TV transmitter tower, its height should be made. So for calculating the height of transmitting antenna, we will take the relation of distance, that is D is equals to 2 of HT into R plus root of 2 of HR into R, where HT indicate the transmitting antenna height and HR indicate the receiving antenna height. R indicating the radius of Earth, that is 6400 kilometer. So now further we will calculate a tower of some height where our transmitting antenna is situated and our receiving antenna is situated at the Earth's surface, right? This is a tower. So now this transmitting antenna some signal to this receiving antenna. So if we will see this receiving antenna is at surface, so this height of the receiving antenna will be 0. So the distance that will be root of 2HT into R. This is our first equation. Now according to the given in question, if we are double the covering range of a transmitting antenna, then what will be the height? So if we will double the distance, so the new equation will be 2 of HT dash into R. That means this HT dash indicating the antenna height in case of when we double the range. So we will take the square both sides in second equation. So the equation will be 4D square is equals to 2 of HT dash into R, right? And here we can put the value of D from above equation. So this will be 4 into 2 into HT into R is equals to 2 of HT dash R. R will be cancelled, right? And 2 will be cancelled. So the remaining that will be HT dash is equals to 4 of HT. That means if we double the range, then height of transmitting antenna should be 4 times of transmitting antenna. Hello everyone. In a Frank-Hertz experiment, an electron energy 5.6 electron volt passes through mercury vapor and emerges an energy of 0.7 electron volt. The minimum wavelength of photon emitted by the mercury atom is close to. So if I write down the energy emitted by the photon will have an energy of, if you see here, electron was having the energy this much. Out of this it emerges this much energy, so it have the energy of. Now in the question it is asked that the minimum energy, so minimum wavelength. So I will write down the energy is equals to hc by lambda, and from here it will be, so the photon which will be having the maximum energy will be having the minimum wavelength. So you can just put the value of Hc in electron volt nanometer and put the maximum value of energy. So if I write down the maximum value of this Hc, it is electron volt nanometer. In division I will write down 4.9. It will be equals to nanometer. And this will be the answer of this question. Now you can just check for the option here. D is the correct one. Thank you. Hello everyone, the question says that a 100-volt carrier wave is mode to vary between, so this is between 160 and 40 volt by modulating signal. What is the modulation index? So in this question I have to find out the modulation index. From the given information it is clear that is value of AC is 100 volt. And now we have also given, so this wave vary between 160 volt to 140 volt. So 160 volt to 40 volt. So wave vary between 160 volt to 40 volt. Now we can write the signal as AC plus AM equals to 160. So it is maximum value, and AC minus AM equals to 40. So now on solving this equation, we get 2 times of AC equals to 200. Hence AC will become equals to
200 divided upon 2, that will be equal to so, and AM signal will become equals to, now put the value of AC in the signal, so we get value of AM is 160 minus 100, that is equals to 60. So now we know modulation index formula to find out the modulation index mu equals to AM divided upon AC. So value of AM is 60 and value of AC is 100. So on solving this equation we get modulation index is 0.6. So it is our answer. Thank you. Hello guys, in this session we are going to discuss a problem of JEE Main Physics exam. So the question is, a 27 milliwatt laser beam has a cross-sectional area of 10 millimeter square. The magnitude of the maximum electric field in this electromagnetic wave is given by, and the values of permittivity of free space is given to you, and the speed of light is also given to you. ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. हमें पूछा गया है कि इंटेंस मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे पूछा गया है. तो देखो सबसे पहली बात तो क्या होता है, जो इंटेंसिटी होता है ईएम वेव का, जिसको मैं आई बोल देता हूँ, वो होता है आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी. ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड ई नॉट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब इंटेंसिटी को हम बोल सकते हैं पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अब पावर हमें गिवन है 27 मिलीवाट और एरिया हमें गिवन है 10 मिलीमीटर स्क्वायर. तो बस यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पावर की, एरिया की, एप्सिलॉन नॉट की और सी की. तो ऑब्वियसली ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी. तो बस बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था ये. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू सबकी. 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर, सी की वैल्यू भी रखते हैं यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल्स टू, पावर लिखते हैं यहाँ पे 27 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया 10 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, सारी मैंने एसआई यूनिट में रख दी है, क्योंकि भाई हमारे पास ई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एसआई यूनिट में है, तो सारे मैंने एसआई यूनिट में रख दी. ठीक है, अब यहाँ से हमें फाइंड करनी है ई नॉट की वैल्यू. तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, देखो 9 से 3 से 9 3 जा 27 से 27 को तो पहले कैंसिल आउट कर दो. तो ई नॉट की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी 2 टाइम्स 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻, यहाँ से देखो ये हो जाएगा -5. ठीक है, तो 10⁻⁻5 हो गया ये, और यहाँ पे -4 बचेगा 10⁻. ठीक है, और उसको इधर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 10⁻⁴. ठीक है, इस 5 को भी ऊपर भेज देंगे. ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 10⁻6. ठीक है, ये है ई नॉट की वैल्यू. इसका होगा अंडर रूट, क्योंकि ई नॉट स्क्वायर है. ठीक है, तो अंडर रूट करेंगे तो 1.414 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 1.414 किलो वोल्ट पर मीटर. ठीक है, तो 1.4 exactly, the option number 3rd is the correct answer. So बस formula based question था and option 3rd is the correct answer. Thank you. Hello everyone. Question is, an amplitude modulated signal is given by Vt is equal to में 10 1 plus 0.3 cos 2.2 into 10⁻⁴t sin 5.5 into 10⁻⁵t. Here t in a second. The sideband frequency is in kilohertz. Given पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7. ओके, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें दे रखा है और हमसे यहाँ से पूछा है कि जो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज होंगी किलोहर्ट्ज में वो कितनी होंगी. ओके, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या हुआ, दो टाइप की, मतलब कि लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड. यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूलेटेड जो हमें सिग्नल दे रखा है वो कितना दे रखा है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल Vt इज इक्वल टू वो दे रखा है 10 और 1 प्लस 0.3 cos 2.2 इंटू में 10⁻⁴t ये दे रखा है, और यहाँ पे ये दे रखा है साइन 5.5 इंटू में 10⁻⁵t.
ओके, ये दे रखा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो जनरल इक्वेशन होता है Vt, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है Vt इज इक्वल टू में AC एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव 1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव अपॉन में कैरियर वेव AM बाई AC cos ऑफ ओमेगा m इंटू में t, और यहाँ पे ये होता है साइन ओमेगा c इंटू में t। ओके, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करने पे क्या आ रहा है? यहाँ पे कंपेयर करने पे हमें ओमेगा m कितना मिल रहा है? वो मिल रहा है 2.2 इंटू में 10⁻⁴, और ओमेगा c यहाँ से कितना मिल रहा है? 5.5 इंटू में 10⁵। ओके, और AC की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 10 है, और AM बाई AC की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.3 है। ओके, तो हमें क्या निकालनी है? साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। ओके, तो हमारा काम केवल किससे है? ओमेगा m से और ओमेगा c से। ओमेगा m कितना दे रखा है? 2.2 इंटू में 10⁻⁴। ओके, सो ओमेगा m किसके इक्वल होगा? देखो 2 पाई FM के इक्वल। सो ये हो जाएगा 2.2 इंटू में 10⁻⁴। सो FM की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी निकल के? 2.2 इंटू में 10⁻⁴, और डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, सो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखे है कितनी यूज करनी है? 22 डिवाइडेड बाई 7। ओके, सो यहाँ से 2.2 इंटू में 10⁻⁴, और डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते हैं हम फर्दर। तो यहाँ से FM हम मेरा निकल के आता है कितना? ये आता है 3.5 किलोहर्ट्ज, क्योंकि हमें किस में बतानी है? फ्रीक्वेंसी जो है साइड बैंड फ्रीक्वेंसी हमें किस में बतानी है? किलोहर्ट्ज में निकालनी है। ओके, तो FM किस में आ गया? 3.5 किलोहर्ट्ज। ओके, सिमिलरली यहाँ से FC कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ओमेगा C हमें यहाँ पे कितना दे रखा है? वो दे रखा है 5.5 इंटू में 10⁵। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई FC के। सो ये हो जाएगा 5.5 इंटू में 10⁵। सो FC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.5 इंटू में 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 डिवाइडेड बाई 22 डिवाइडेड बाई 7। सो FC की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? ये आ रही है निकल के 87.57 किलोहर्ट्ज। ओके, तो यहाँ पे देखो जो FC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 87.57 किलोहर्ट्ज। ओके, FM और FC मुझे पता चल गया यहाँ पे। ओके, अब मुझे निकालने हैं साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो यहाँ पे दो टाइप की होंगी, LSB लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा? FC माइनस FM। क्या हो जाएगा? FC माइनस FM। ओके, सो FC माइनस FM कितना हो गया? 87.57 माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3.5। ओके, तो यहाँ से ये निकल के आता है कितना? ये निकल के आता है मेरा यहाँ से देखो 87.57। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ से मेरा 87.57 माइनस ऑफ 3.5। ओके, तो यहाँ पे ये निकल के आता है मेरा 85। ओके, ये आ रहा है 84.07 समथिंग। ओके, किलोहर्ट्ज। ओके, और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी USV कितना हो जाएगा? हो जाएगा FC प्लस FM के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे 87.57 प्लस 3.5। ओके, तो 87.57 प्लस 3.5। ओके, ये हो गया, तो ये आता है 91.07। ओके, ये आता है 91.07 किलोहर्ट्ज। ओके, तो यहाँ पे दोनों हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी थी साइड बैंड। ओके, तो लोअर साइड बैंड कितना आया? 84.07।
और अपर साइड में कितना है 91। ओके, ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन है यहाँ पे जो नियरली इक्वल है इनके, तो यहाँ पे देखो 89.25 91 के जस्ट नियरली इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड will be correct for this question. I hope you like this video and thanks for watching.